Okay, our next topic to be covered is sex hormones and how the sex of a baby is determined. What are sex hormones? And I already told you, bachcho, that our cells are having 23 pairs. 23 pairs. That means 46 chromosomes. 46 chromosomes. और जब मैं आपको रिप्रोडक्शन का लेसन दे रहा था, आपको बोला था ना मैंने कि इट इज sperm or a male gamete and egg or ovum or a female gamete is not a cell. It is a half cell. Half of this comes from mom and half of this comes from dad. ये बोला था मैंने आपको. Yes. कहने का मतलब क्या है बच्चों? Chromosomes are always in pair, and out of these 23 pairs, one pair is for sex. It determines the sex. What type of pair it is, that is going to determine the sex of the baby. Okay? Sorry. In case of boys, the pair of sex hormones contains what? X and Y chromosomes. And in case of girl, it is containing X and X. X and Y, that means at the time of fertilization, the X has come from the mom and Y has come from the dad. And when he is going to, that boy is going to produce the male gametes or the sperms, in this type of cell division, it is known as a reductional division. That means they are separated. Chromosomes are what? Pairs are separated. One goes to one side, other goes to the other side. That means one goes to the one sperm and second set goes to the second sperm. That means when the male gametes are formed, some male gametes or the some sperms will be having X chromosome and some means 50-50. Not some, 50-50. Reason being, जितने भी वहां रिडक्शनल डिवीजन होगी, जितने भी गैमेट्स बनेंगे, वो पेयर जब अलग होंगे, हाफ विल गो टू half sperm, other half will go to the other half sperm. That's all. That means the male gamete contains chromosomes with the what? Sex character of X gene and Y character of Y gene. Y is for male, X is for female. Now, in case of the female gamete, the egg or the ovum, not egg or the ovum, egg contains single X only, one chromosome, not pair, but the sex cells. कहने का मतलब क्या है? जो XY है, ये sex cells के अंदर है. और sex cells से जब gametes बनते हैं, they get separated. अब क्या होगा? In case of boy, जब sperm बनेंगे through these sex cells, in case of boy, half sperm will be having X chromosome, half sperm will be having Y chromosome. Likewise, when egg is produced in the ovary, this sex cells of the female, which is having X and X pair of chromosome, is going to have a egg like this. यानी का मतलब क्या? उसके अंदर केवल X होगा, X and Y नहीं होगा. अब क्या है बच्चों? I have told you in the reproduction chapter lesson that only one sperm is capable of fertilizing the egg. यहां आके फिर पेयर बनता है. Suppose with this egg,
सिंगल एग आता है, डबल एग हम शो भी ना करें तो भी चलेगा, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ शोइंग यू हाउ इट इज देयर. इफ sperm with X chromosome is fertilizing, resultant will be X and X. The zygote formed will be having X and X pair of chromosome. बाकी 23 दूसरे वाले, 23 दूसरे वाले आएंगे. It will become 23 pairs. और अगर Y क्रोमोसोम फर्टिलाइज करता है, कहने का मतलब क्या, स्पर्म विद द Y क्रोमोसोम फर्टिलाइज करता है, the zygote or the fertilized egg will be having X and Y. X and Y, baby boy. X and X, baby girl. तो बच्चों क्या है, who is responsible for the male or the female child? अक्सर क्या होता है बच्चों, दादी जो है मम्मा को कोसती है, जिनके घर बेटा नहीं होता, तू तो बेटा पैदा ही नहीं कर सकती. क्यों भाई, इसमें मम्मा का क्या कसूर है? व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ मदर? ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज. ये तो ऊपर वाले ने देखना है. 50-50 चांस है. हो सकता है ये 50 वाला चांस 2 बार आपके साथ हो गया, दोनों बार लड़की हो गई, और वो 2 बार जो 50 वाला चांस है, 50-50 दिस वे और दैट वे, वो दोनों बार किसी और के साथ बॉय वाला हो गया. दैट मीन दोनों बार वो 50-50 चांस में आधा आधा भाई. तो उसमें वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म ने फर्टिलाइज कर लिया, उसमें दोनों बार 50-50 चांस है. सो नाइदर द मदर नोर द फादर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस. दोनों में से कोई, पापा बुक्स में लिखा होगा पापा इज, सुनो, पापा इज नॉट रेस्पॉन्सिबल. यस, इन द वे, रीजन बीइंग द स्पर्म्स ऑफ फादर कंटेन X and Y type of chromosomes. That is why you can say, but no, father is also not responsible. It is God gifted. Which sperm is going to fertilize? 50-50 चांस है. आप लॉटरी लगाते हो कोई, तो 1 in 1000 चांस है, लग जाती है तो लकी. हेयर 50-50 चांस है भाई, इधर या इधर, या लड़की या लड़का, दैट्स ऑल. एक तो होगा. दैट इज वाई यू कैन से आवर पॉपुलेशन इज अबाउट 50-50, नॉट एग्जैक्टली 50-50. वाई? अब हरियाणा में वो क्या कहते हैं, प्रीनेटल टेस्ट एंड ऑल दैट, एंड अबॉर्शन हैज बीन इलीगलाइज्ड, दिस एंड दैट. ये जहां स्वस्थ बच्चे का जांच की जाती है, ये वो सब टेस्ट वेस्ट बंद हो गए. किस लिए? हरियाणा में तो लड़की पैदा ही नहीं होने देते थे. I think still the ratio of girls to boys is the lowest in Haryana. So, कहने का मतलब क्या है? सेक्स डिटरमाइंड कब होता है? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ओनली. और सबसे बड़ी बात क्या बच्चों, कई बार पता है क्या होता है, पहले लड़की हुई है, सास क्या करती है, अपनी बहू को लेकर वो किसी पीर फकीर के पास जाना शुरू कर देगी. 3 महीने के बाद आना बाबा, उसको वो सेब दे देगा, कुछ और दे देगा. वो तो भाई जो डिसाइड था वो पहले हो चुका. अगर तो लड़का हो गया तो दादी क्या करेगी, बहुत सारे ढेर सारा पैसा वैसा कपड़े वपड़े बाबा जी को दे आएगी. और लड़की हो गई तो आपकी किस्मत, आपकी किस्मत. भाई मैंने तो बहुत कोशिश की. अरे कुछ नहीं है, किसी फकीर पीर फकीर के कहने से लड़का नहीं होता. बहुत सारे मिलेंगे संत बाबा आपको. डोंट बी टेकन बाय दीज सिली थिंग्स. कोई बाबा आपको बेटा या कोई बाबा आपको बेटी नहीं दे सकता. सपोज आप बेटी चाहते हो, 2 बेटे आपके पास हैं, तो और किसी बाबा के पास जाओगे, उसके पास कुछ जादू की छड़ी नहीं है, तो ये ऐसी घुमा दे आपके ऊपर, ओके दिस टाइम द स्पर्म विद द एक्स क्रोमोसोम विल फर्टिलाइज. नो, 50-50 चांस है ऊपर. गॉड गिफ्टेड है यार. सो हाउ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड और द बेबी इज डिटरमाइंड. नाउ बहुत अच्छी एक चीज आपको बताने जा रहा हूं. देयर आर सर्टेन माइथ्स एंड टेबल्स
कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ वहम हैं, कुछ कस्टम्स हमारे बने हुए। व्हाट इज द माइथ एंड टैबू? व्हाट इज माइथ? माइथ एंड टैबूज रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन। What is the myth? A widely held but a false belief. सब लोग उसमें विश्वास करते हैं, लेकिन वो है कुछ नहीं करने, मतलब क्या? अंधविश्वास। उसे हम माइथ बोलते हैं। और टैबू क्या बोलते हैं? व्हाट इज टैबू? सोशल कस्टम एक बन गया हमारे, नहीं भाई हमारे यहां है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। और कस्टम्स कैसे बनते हैं बच्चों, आपको मालूम है? रीति रिवाज। आई वॉज इन यूपी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 94 to 97 एंड आई हैपन टू अटेंड सम मैरिज। अब वो कुछ उन्होंने पंडित जी ने कुछ करना था रीति रिवाज अपना, उनका वो क्या कहते हैं, मामा से वो भात आती है आपके अपने यहाँ कैसे, वो जो भी है। तो वो लड़के का फादर बोलता, अरे भाई वो क्या कुछ नाम था उसका, अरे यार वो बिल्ली जो है ना, बिल्ली घर वाली बिल्ली, उसको पिंजरे में बंद करो, पिंजरे में उसको बंद कर दो। क्यों भाई? कहता हमारे रिवाज है कोई भी शुभ कार्य करने से पहले पंडित जी से हम बिल्ली को पिंजरे में बंद करते हैं। ठीक है भाई। तो अपना जो मेरी खोपड़ी है थोड़ी कुछ उल्टी है, उनके कुछ घर में पढ़े लिखे लोग भी थे, तो मैंने पूछा ये क्या रिवाज है यार? मैंने रिवाज बहुत सुने हैं, बहुत देखे हैं भाई, बट ये क्या रिवाज है यार? कोई भी पूजा करनी है पहले बिल्ली को पिंजरे में डालो, ये क्या रिवाज हो? बोला सर क्या बताए, हमारे दादा परदादा पीछे के जमाने में उन्होंने घर में एक बिल्ली पाल रखी थी, तब से बिल्ली भी पालते आ रहे हैं घर के अंदर। क्यों भाई? बिल्ली को ढकना है, बिल्ली को पिंजरे में डालना है, घर में बिल्ली नहीं तो लाओगे कहां से? तो कहता क्या था, घर की बिल्ली है, वो घूमती फिरती रहती थी, उनके शादी थी, जब भी वो पंडित जी या घर वाले कोई भी अपना वो फंक्शन करने लगे, कोई भी रीति रिवाज करने लगे, बिल्ली आके कूद जाए। जब बिल्ली कूद गई तो बिल्ली रास्ता काट गई। अब इसको वहम मानते हैं, वहम मानते हैं ना। बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो उसको अशुभ मानते हैं। दोबारा से वो क्या होता था, कई बार तो एक ही रीति रिवाज को, एक ही फंक्शन को करने में उनको 4-4, 5 बार करना पड़ता था। क्यों? हर बार बिल्ली कूद जाए। तो गुस्से में आके उनके परदादा जी, छक्कड़ दादा जो भी थे, तीसरी चौथी पीढ़ी, अरे यार इसको पिंजरे में बंद करो। और अब क्या होता था, उस घर में कोई भी फंक्शन होता था, सबसे पहले अरे यार पहले बिल्ली को पिंजरे में बंद करो, इस कैट को पिंजरे में बंद करो। वो तो मर गए, आगे उनकी पनीरी शुरू हो गई। अब वो भी बिल्ली घर में है, ठीक है, तो वही अरे भाई कोई भी काम करना है, हवन करना है, यज्ञ करना है, कुछ भी करना है, बिल्ली को पिंजरे में बंद करो। अब क्या हुआ, दादा परदादा ऊपर चले गए, प्रेजेंट एज आ गई, अब भी क्या है, बिल्ली को बंद करो। कस्टम, सोशल कस्टम बन गया उनके परिवार का। क्यों? बिल्ली बंद नहीं होगी तो यह हवन नहीं होगा, मामा की भात नहीं भरी जाएगी। तो हाउ, कहने का मतलब क्या है, अंधविश्वास, कस्टम, सब क्या है, अकॉर्डिंग टू साइंस ढकोस ले। अब क्या है, सबसे बड़ा अंधविश्वास क्या है बच्चों? सबसे बड़ा अंधविश्वास क्या है? फादर is not, but mother is responsible for the birth of a female child. अभी हमने डिस्कस कर ली, nobody is responsible. अंधविश्वास है भैया, औरत ही बेटा दे सकती है, औरत ही बेटा दे सकती है, अंधविश्वास है। But if we go to the science, it is at the time of fertilization, then and there the sex is determined on the very first day of conceivement or the pregnancy. दूसरा जो सबसे बड़ा बच्चों का एक वो कस्टम बना हुआ है, या एक वो सोशल कस्टम बना हुआ है, वो क्या है बच्चों? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन और ड्यूरिंग द पीरियड, यू कैन से सिंपली, ए गर्ल
और ए वुमन, क्या वो शादीशुदा है, इज नॉट अलाउड टू एंटर इन द किचन और टू एंटर द मंदिर। मंदिर भी नहीं जाने देते, किचन में भी नहीं। अरे क्या भाई, इट इज अ प्रोसेस ऑफ लाइफ। ये तो नहीं है कि जानबूझ के करने वाली चीज है। इट इज अ लाइफ साइकिल है। ये साइकिल ने चलना है, लाइफ ने चलना है अप टू दिस एज ऑफ द गर्ल्स और द वुमन। सो काहे का कस्टम यार, हमारे भाई नहीं जाने घुसने देते किचन में, मंदिर में नहीं जाने देते। वो एक महाराष्ट्र में शनि मंदिर, लेडीज आर नॉट अलाउड। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा व्हाट इज दिस नॉनसेंस, व्हाई लेडीज आर नॉट अलाउड। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद भी फिर वही से आपका शनि शिंगर मंदिर, ऐसा कुछ मंदिर का नाम है भाई, यानी अभी भी उस मंदिर में लेडीज नहीं जा सकती। इवन हमारे लर्नड दैट एचआरडी मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी ने भी बोल दिया था, पढ़े लिखे वो डिपार्टमेंट को हैंडल कर रही हैं, वो कितना पढ़ा लिखे हैं, नो नीड टू अपना कंट्रोवर्सी यू डिस्कस। उन्होंने भी ये यहां तक कह दिया कि क्या एक 12-15 साल या उससे बड़े की औरत ऐसे समय में मंदिर जाएगी? व्हाट दिस नॉनसेंस यू आर टॉकिंग। उसके कोई भूत आ गया है, कोई आत्मा उसमें घुस गई है। ऑन व्हाट ग्राउंड्स शी हैज बिकम इम्प्योर? व्हाई शी कैन नॉट गो टू द टेम्पल? व्हाई शी कैन नॉट एंटर इनटू ए किचन ऑफ द हाउस? पहले भी तो जा रही थी भैया, पहले उसके हाथ का बनाया हुआ खाना तो दादी भी और नानी भी और दादाजी भी चटकोरे ले लेके, बड़ा टेस्टी है, बड़ा टेस्टी है। तो क्या आज अगर वो वही दाल मखनी या कढ़ाई पनीर या कुछ और बनाएगी तो आज उसमें क्या वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस आ जाएंगे, जहर घुल जाएगा उसके हाथ से? नो। सो दीज आर द माइथ्स एंड टैबूज व्हिच आर प्रिवेलिंग इन आवर इंडिया, एट लीस्ट नॉट इन फॉरेन कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्री में ऐसी बातें नहीं है, हमारे ही देश में ये सारी बातें चलती हैं। सो दीज आर नथिंग। और सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों, आजकल तो क्या है, गर्ल्स कैन कीप देम नीट एंड क्लीन एंड हाइजेनिक कंडीशंस के अंदर, वो भी हम डिस्कस करेंगे, हाउ टू मेंटेन द हाइजेनिक हेल्थ एंड ऑल दैट। सो आई थिंक फॉर टुडे इट इज मोर देन सफिशिएंट। यस, एडोलेसेंट प्रेगनेंसी वी शुड डू। व्हाई? डिफेक्ट्स ऑफ चाइल्ड मैरिज। छोटी सी बात है, कहने का मतलब क्या हुआ है, मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया था, द एज ऑफ ए गर्ल हैज बीन फिक्स्ड एट 18 एंड फॉर ए बॉय 21। क्यों? तब तक क्या होता है, प्यूबर्टी है, सेक्स हार्मोन्स आर बीइंग सीक्रेटेड एंड दे आर डेवलपिंग द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, दिस एंड दैट। वो क्या है, इस एज आते आते एडोलेसेंट प्रेगनेंसी, कहने का मतलब क्या है, अगर अर्ली स्टेज में प्रेगनेंसी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड मैरिज बिलो द एज ऑफ 18 ऑल दैट, उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस क्या है वो हम फटाफट आप देख लेते हैं। आपकी बुक में कुछ 2-4 बातें लिखी होंगी, मैं आपको बताऊंगा। इट विल टेक ए वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। The girls younger than 18 years of age are not prepared physically and mentally for motherhood. Yes, मां बनना. Yes, menstruation has started. Ovaries have started preparing the egg. But motherhood, बच्चे को पालना, कैसे पालना है, कैसे संभालना है, और क्या है बच्चों, शायद आपको नहीं मालूम, जानवरों के बच्चे तो हम देखते हैं वैसे ही पल जाते हैं, फर्स्ट सेकंड डे से वो चलना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ क्या है बच्चों, फर्स्ट 3 के, आजकल अमिताभ बच्चन की भी ऐड आती है बच्चों, फर्स्ट 1000 डेज, आफ्टर 6 months क्रॉलिंग, फिर वो सहारा लेके चलना, फिर अपने आप चलना, गिरना, पड़ना, ठीक है। इट कम्स इन स्टेजेस। तो पहले 3 साल बड़े क्रूशियल होते हैं यंग एज में, चाइल्ड मैरिज के अंदर उसको अपनी संभाल लिया,
आपकी एज के बच्चे जो 8th में है, 9th में है, 10th में है, कहीं लोग कर देते हैं गांव में शादी, 10th के बाद शादी करते। आर दे कैपेबल ऑफ बेयरिंग द बर्डन ऑफ चाइल्डहुड? नो। अपना ही भार संभालना मुश्किल है, अपने ही मन को कंट्रोल करना मुश्किल है, बच्चे को कहां संभालेंगे? ठीक है। लाइकवाइज फ्यू अदर थिंग्स, अर्ली मैरिज एंड मदरहुड काज हेल्थ प्रॉब्लम इन द मदर एंड द चाइल्ड। यस, बच्चा है, खुद ही नहीं खाता है, मूडी है, पिज्जा खाना है या बर्गर खाना है, और जब बच्चा होता है तो शी नीड्स ए हेल्दी फूड। अपना ही ख्याल नहीं कर पाते, बच्चे का क्या ख्याल करेंगे? अर्ली मैरिज एंड मदरहुड काज agony, extreme sufferings to the girl as she is not prepared. Early marriage and motherhood curtails the chances of higher education of girls. Yes. अब क्या बच्चों, 10th पास नहीं की, शादी कर दी, बच्चे पैदा करने हो गए शुरू। अरे बहुत लाइफ पड़ी है, अपने आप को समझदार बनाइए, हायर एजुकेशन लीजिए, जिंदगी में आगे जाइए। कौन रोकने वाला है? अब क्या है, वही तो मैं कह रहा हूं, ये जब आपके अंदर इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल डेवलपमेंट आती है, इस चीज को अपने आप में लाइए। नो, अपने माँ बाप को आप स्ट्रिक्टली कह सकते हो, टिल द एज ऑफ 20-25 टिल आई एम स्टडिंग आई एम नॉट गोइंग टू मैरी। बॉयज आल्सो, अरे भैया आपको 18-20 साल की उम्र में धकेल दिया इस लाइन में, क्या करोगे? मन भटकेगा, हर वक्त बीबी की तरफ रहेगा, कहां जाओगे, किधर जाओगे? कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। सो अपने जब तक पांव पे खड़े नहीं होते, अपने लायक नहीं बनते, अपनी एजुकेशन प्रॉपर नहीं करते, तो ये सारी बातें जो हैं अर्ली मैरिज की, चाइल्ड मैरिज की हैं। अनफॉर्चुनेटली सम ऑफ द एरियाज ऑफ आवर कंट्री, यस, मैंने बता रखा, आपको ट्रेडिशन है चाइल्ड मैरिज करने की, इट शुड बी स्टॉप। इन पर्टिकुलर हमारे नेबरहुड स्टेट के अंदर, राजस्थान, ये प्रथा अब भी चल रही है। एमपी आल्सो, राजस्थान, एमपी, जहां अभी कल्चर गांव वाला चलता है कुछ एरियाज में, आदिवासी में ये। चलो, एनी हाउ, विद दिस वी एंड आवर टॉपिक ऑफ टुडे। टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग 2-3 small topics, that is reproductive health, how to maintain a good health, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और क्या करना चाहिए, हार्मोन्स अदर देन sex hormones. That's all. These are the 2 topics that we are going to cover in 40-45 minutes tomorrow, and our chapter will be over. Thank you. Enjoy your study. Bye.